just wait. Yeah, so last time हमने कुछ MCQ सॉल्व किए थे जो कि एरर्स के ऊपर बेस्ड थे, बराबर। तो एरर्स जो होते हैं, एरर्स का किस तरह से हमको कैलकुलेशन करना होता है, हाउ टू फाइंड आउट द एरर्स इन केस व्हेन द देखिए बाकी बच्चों से जा रहा है वही मत रिपीट कीजिएगा आप। देखिए ओके, तो देखो ठीक से यहाँ पे yes, let us try to solve some MCQs based on the same that is we have discussed last time. Yes, just try this 99th MCQ here. Okay, ये जो 99th नंबर का MCQ है तो वो हम स्टार्ट करेंगे। देखो ठीक से, just read it once. देखो एक बार रीड करो फटाफट। Yes, it tells us simply that the length, breadth and thickness of a block are measured with the help of a meter scale, and that is given as, yes, it's given as L is equal to 15.12 plus or minus 0.01 centimeter. B is also given and T is also given. Then the percentage error in the volume of the block is, देखो ठीक से, अब यहाँ पे percentage error in the volume we want to find out, and at the same time we are given with the length, breadth and thickness, बराबर है। अभी देखो तुमको पता होगा कि वॉल्यूम कैसे डिपेंड करता है, how the volume depends on the length, breadth and thickness. तो ये हमको पता है ऑलरेडी कि वॉल्यूम कैन बी रिटर्न टू बी इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू थिकनेस, बराबर। तो अभी इसको यूज करेंगे तो हमको परसेंटेज एरर के बारे में हम क्या बोल सकते हैं, तो परसेंटेज एरर इन V मतलब डेल्टा V अपॉन V which is going to be equal to delta L upon L plus delta B upon B and here it will be delta T upon T, करेक्ट है, जिससे हमको ये मिलेगा। और इसको अगर हम अगर दोनों तरफ अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो हर एक जो है वो परसेंटेज एरर बन जाएगा। इस तरफ भी हम पूरा ब्रैकेट लिख के उसको सीधा 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल, जिससे वो परसेंटेज एरर बन जाएगा। यस, तो अब देखो यहाँ पे हमको ये जो परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम है वो निकालना है, इसको हम बोलेंगे परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। ओके, विच इज एक्चुअली गोइंग टू बी, अभी डेल्टा एल अपॉन एल कितना है, देखो just see here delta L how much it is, so length is given to be 15.12 बराबर, that is going to be L and this 0.0001 centimeter it's going to be delta L, so just replace it by that, so here it is going to be 0.01 divided by 15.12, right, plus same is the case with delta B upon B also, so देखो ठीक से delta B is going to be 10.15, so here it is 10.15 and here it is 0.01 again plus, and here it will be finally thickness which is going to be 5.28 and delta T is again the same thing, so 5.28 यहाँ पे आ गया and 0.01 as it is, and that is whole to be multiplied by 100, remember. Okay, so that what we can get here is if we multiply this 100 by all these terms inside, then we can just get this 0.01 and 100 just cancelled, so that we get this as 1 upon 15.12 plus 1 upon 10.15 plus 1 upon 5.28, that's it, and this is actually going to be the percentage error which can be found out easily by using the calculator.
or log table anyways. Yes, so see here it is going to be 1 divided by, नहीं तो ऐसा करेंगे 15.12 उसका reciprocal, right? How much it comes out to be? 0.066. Okay, 0.066. Yes, then again 10.15 और उसका भी reciprocal, so it's going to be 0.098. okay, plus 0.098, and finally 5.28 reciprocal, which is 0.189. yes, 0.189. okay, now just add these three numbers up. So 0.066 plus 0.098 plus 0.189, which comes out to be 0.353, right? So here it is going to be 0.353. yes, 0.353. and but actually ये जो सभी numbers है इनके अंदर दो ही significant figures है, so we can keep only two significant figures here in the answer and get this 0.35% as a percentage error. okay, yes, so 0.35 is approximately it is going to be 0.37% as a final answer. okay, let us try to do this 100th one. Question number 100. देखो ठीक से, mass and volume of a body are found to be 500 plus or minus 0.05 and 1 plus or minus 0.05 meter cube respectively. Then the maximum possible error in its density is again very simple. See here, mass is going to be 500 and 0 plus or minus 0.05. ये हो गया उसके अंदर का error. yes, so ओके, तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम होता है, बराबर? तो अभी एरर इन द डेंसिटी एक्चुअली मतलब डेल्टा डी अपॉन डी विल बी एक्चुअली इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन एम प्लस डेल्टा वी अपॉन वी, करेक्ट है? तो अभी इसमें परसेंटेज एरर भी वैसे ही होगा. तो देखो ठीक से, परसेंटेज एरर अगर हमको निकालना है, ये देखो परसेंटेज एरर चाहिए ना हमको, तो दोनों तरफ हमको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, करेक्ट है? यस, तो इसमें लेकिन ये बात याद रखो 500 प्लस और माइनस 0.05 एंड दिस इज 1.00 एंड प्लस और माइनस 0.05. यस, तो अब यहाँ पे इंटू 100 इस तरफ भी कर दो पूरा, so that we can get it in percentages, so that we get this as a percentage error in density, that is D, percentage error in D, which is going to be actually equal to delta M, which is 0.05 upon 500, correct है? Plus here it is going to be वापस 0.05 upon 1.00, correct है? And that is whole multiplied by 100. Now if you just distribute this 100 both of these terms here, then we get this 5 upon 500 as a first term, plus here it is going to be 5 upon 1.00 as it is, so that these two add up to, तो यहाँ पे 5 कैंसिल हो जाता है और 1 अपॉन 100 मिलता है, और यहाँ पे 5 अपॉन 1 मतलब 5 मिलता है, और इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे एक्चुअली दिस शुड बी 5.00 बिकॉज वी हैव टू कीप इट इन अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस. ओके, तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमको उसको रखना है, ठीक है? ओके, अभी इसमें यहाँ पे आ जाएगा 0.01 प्लस 5.00, करेक्ट है? सो दैट दिस एड अप टू 5.00
0.01%. Okay, so this is going to be the percentage error in D. Okay, so percentage error in D is going to be 5.01%. Means approximately it is going to be 5%. That is, D is going to be actually the correct option. Yes. ओके, ये देखो यहाँ पे ठीक से ये वाला क्वेश्चन करेंगे 112th one. Yes, the observation in an experiment the following observations were recorded. ठीक है, L is given to be 2.820 meter and M is given to be 3.00 kilogram. Small l is given to be 0.087 centimeter and diameter D is actually 0.041 centimeter. Taking G as 9.81 meter per second square using the formula, what is the maximum permissible error in Y? तो देखो ठीक से अभी हमको क्या करना है इसमें, सी हियर यहाँ पे अभी एरर्स नहीं दिए हैं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर के एरर नहीं दिए हैं, बट अभी देखो जब जहां तक लेंथ का सवाल है तो लेंथ का जो रीडिंग है वो देखो ठीक से इट इज अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, करेक्ट है, यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेसेस तक वो करेक्ट है। अगर उसका वैल्यू लेंथ का जो वैल्यू है वो 2.820 है, देखो ठीक से द वैल्यू ऑफ लेंथ इज obtained to be L is equal to 2.820, बराबर है ना? यस 2.820 मीटर। यस, तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब ही ये होता है कि इट इज मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट विच गिव्स अस 3 डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। ये जो 3 डिजिट्स लिखे हुए हैं डेसिमल पॉइंट के बाद वो ऐसे ही तो नहीं हमने डाले हैं, वो जरूर कैलकुलेट किए हैं, वो मेजर किए हैं तब तो डाले हैं कि नहीं। इसका मतलब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो डेसिमल पॉइंट के बाद, ठीक है, 1 डिजिट, 2 डिजिट और 3 डिजिट्स तक एक्यूरेट मेजर कर सकता है, तो उसका लिस्ट काउंट कितना होना चाहिए? तो उसका लिस्ट काउंट होना चाहिए 0.001। देखो ठीक से, क्यों? क्योंकि वो तीसरे डिजिट तक एक्यूरेट मेजर कर सकता है। ये जीरो जो है वो जीरो भी सिग्निफिकेंट है, मेजर किया हुआ है, तो करके इस ये पूरा जो ऑब्जर्वेशन है इसके अंदर के अगर हम देखेंगे इस ये ऑब्जर्वेशन लेने वाले इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट कितना होना चाहिए? 0.001 इतना होना चाहिए मीटर ऑब्वियसली। ओके, एंड दैट इज एक्चुअली गोइंग टू बी द value of delta L here. That means the maximum possible error in the measurement of that number or that measurement. देखो, तो जिस इंस्ट्रूमेंट से हम वो निकालते हैं तो उससे उसका एरर पता चल जाता है। जैसे देखो अभी यहाँ पे ये जो मास है, मास इज गिवन टू बी 3.00 किलोग्राम, करेक्ट है। You can just copy it here. The mass is going to be 3.00 kilogram. Yes. तो अभी इसका मतलब ये क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जरूर ये जो इंस्ट्रूमेंट है, जिस इंस्ट्रूमेंट से ये हमने मास मेजर किया हुआ है, वो इंस्ट्रूमेंट डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक एक्यूरेट मेजर कर पाता है, तब तो ये 2 जीरोस हमने मेजर किए हैं। तो इसलिए फिर उसके अंदर का जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर है मास के अंदर का वो रहेगा 0.01 किलोग्राम, क्योंकि वो डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक एक्यूरेट मेजर कर पाता है, इसलिए। ठीक है, अभी चलो नेक्स्ट आगे बढ़ो। तो लेंथ का जो वैल्यू दिया हुआ है वो है 0.087 सेंटीमीटर, करेक्ट है, 0.087 centimeter. This is the value of length actually, but if you want to find out delta L in the same logic, we can say that it will be actually 0.001 centimeter, correct है। And in the same way here in the next step we are given with this diameter which is going to be 0.041 centimeter. So अगर diameter 0.041 है सेंटीमीटर, तो इसका मतलब उसके अंदर एरर कितना आया? तो एरर उसके अंदर आएगा 0.001 सेंटीमीटर के बराबर का, बिल्कुल। तो जबकि चारों के अंदर के एरर्स हमको मिल गए, नो डाउट, तो फिर यहाँ पे
उसके अंदर का जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर है तो वो हमको इस फॉर्मूला से मिल जाएगा। देखो पहले फॉर्मूला हम कॉपी करेंगे एज इट इज, जो कि यहाँ पे है y इज इक्वल टू 4mgl अपॉन पाई डी स्क्वायर एल। ओके, देखो ठीक से, y इज इक्वल टू 4mgl अपॉन पाई इंटू डी स्क्वायर इंटू स्मॉल एल। करेक्ट है? देखो ठीक से, 4mgl अपॉन पाई डी स्क्वायर एल। यस, सो एंड g इज ऑल्सो गिवन हियर। देखो g का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट? सो व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ दिस g हियर? डेल्टा g उसको हम बोल देंगे, इट विल बी 0.01 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट है? यस, तो ऑल ऑफ दिस आर द एरर्स। हाँ, नो डाउट, ये जो 4 है, दिस 4 इज अ कांस्टेंट, इट्स अ नंबर, ठीक है? एंड दिस पाई इज आल्सो जस्ट अ नंबर, so there is no error in the measurement of that those two numbers. Yes, so अभी यहाँ पे डेल्टा y अपॉन y इक्वेशन देखो कैसे बनेगा। डेल्टा y अपॉन y will be actually equal to 4 is measured accurately, it doesn't have any error। तो सबसे पहले हम किसके ऊपर फोकस करेंगे, मास के ऊपर। तो यहाँ पे आएगा फर्स्ट टर्म हमारा डेल्टा m अपॉन m, करेक्ट है? प्लस सेकेंड टर्म क्या आएगा बताओ, ये देखो ये g आएगा यहाँ पे, तो g के ऊपर फोकस करेंगे तो हमको मिलेगा एक्चुअली डेल्टा g अपॉन g प्लस, अब यहाँ पे क्या आएगा, l के ऊपर फोकस करो ठीक से, तो उसके अंदर का रिलेटिव एरर बनेगा डेल्टा l अपॉन l, राइट? प्लस प्लस है माइनस प्लस, क्योंकि यहाँ पे भले वो डिनोमिनेटर में है लेकिन फिर भी हमको, एक मिनट, पावर्स तो नहीं ना, हाँ ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो पावर सिर्फ इसको है, d को है, d का स्क्वायर यहाँ पे मिल रहा है, तो इसलिए फिर यहाँ पे अच्छा पाई का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उसके अंदर कोई एरर नहीं है, तो इसलिए डेल्टा पाई इज 0 एंड दैट्स व्हाई वी कैन नॉट इंक्लूड इट। तो 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा d अपॉन d एंड प्लस अगेन हियर इट इज डेल्टा l अपॉन l। ओके, एंड जस्ट पुट ऑल द वैल्यूज हियर इन दिस फॉर्मूला। ओके, हमको परसेंटेज एरर निकालना है या रिलेटिव एरर निकालना है? यस, मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर निकालना है कि नहीं, क्योंकि ऑप्शन में सब परसेंटेज ही दिख रहे हैं, तो इसलिए फिर यहाँ पे परसेंटेज एरर के लिए क्या करना है, इसको इनटू 100, LHS में भी हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और RHS में भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, ये हो गया 100 से मल्टीप्लाई, और ये पूरा जो है वो भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। यस, जिससे हमको ये मिलेगा, अभी देखो डेल्टा m कितना है, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है, डेल्टा m is going to be 0.01। just all plug in all the values which are observed here in the, ये पूरा जो सेक्शन दिख रहा है यहाँ पे सारे वैल्यूज दिए हुए हैं देखो। ओके, तो यही वैल्यूज हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे फटाफट। तो मास इज गिवन टू बी, डेल्टा m is given to be 0.01, that is to be divided by the mass which is 3.00, correct? Plus here it is delta g which is going to be 0.01 again upon 9.81 as it is, plus here it is 2 times of delta d is actually going to be, right, 0.001, right? So this is 0.001 and that is to be divided by this 0.041, right? So this is 0.041, okay, plus delta L which is given to be 0.001 and that is whole divided by 0.087, okay, and then just work this out, this is to be multiplied by 100 again also। तो उसके नेक्स्ट स्टेप में वो बनेगा सिंपली 1 अपॉन 3.00 प्लस here it is going to be 1 upon 9.81 plus 2 times 0.01 into 100 which becomes 0.2 actually, that is to be divided by 0.041 and finally this is 0.1 upon 0.087 and we have to solve all this and work out this final answer। तो अभी देखो यहाँ पे 1/3 कितना आएगा, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इट विल बी 0.33 रिकरिंग प्लस, अब यहाँ पे 1/9.8 कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली भी हम निकाल सकते हैं आराम से, बट
सिंपली 9.81 का रेसिप्रोकल अगर कर दो तो वो अप्रोक्सीमेटली 0.1019, मतलब 0.10 ही हमारे लिए सफिशिएंट है, 0.10, ठीक है। प्लस अभी 0.2 को अगर डिवाइड करेंगे 0.041 से, तो ये देखो 0.2 डिवाइडेड बाय 0.041, which is actually going to be नहीं 4.87, करेक्ट है। दिस इज 4.87 प्लस 0.1 should be divided by 0.087, which happens to be 1.15 approximately. So this is 1.15. Okay, just add all these up. So we are going to get it as 0.33 plus 0.1 plus 4.87 plus 1.15, right? This is actually going to be 6.45. So approximately 6.45%. This will actually be the error. डेल्टा एल बाय एल नहीं लिया क्या हमने? अरे यार, ओके ठीक है, वो हम लास्ट में ऐड करेंगे। प्लस डेल्टा एल कितना है वो? डेल्टा एल 0.001 अपॉन एल, मतलब 2.820, एंड दैट इज शुड बी मल्टीप्लाई 100 आल्सो। तो ये कितना बनता है देखो, दिस एक्चुअली बिकम्स 0.1 upon 2.82. How much is this? 0.1 upon 2.82, which comes out to be 0.3035. Okay, so plus 0.035, उससे एक्चुअली ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। देखो 6.45 plus 0.035, how much it comes out to be? 6.45, वो चेंज नहीं हुआ। अरे सॉरी, 6.45 plus 0.035, 6.485, 6.485%. Okay. So actually it's going to be 6.5% approximately. Yes. Okay. चलो ये वाला कर सकते हो तुम खुद से करके दिखाओ ओरली। देखो रेजिस्टेंस R is given to be V upon I, where V is given to be 100 plus or minus 5 and I is given to be 10 plus or minus 0.2. What is the total error in R? Okay, R के अंदर का परसेंटेज एरर कितना है वो हमको चाहिए। Just copy down all these values immediately. देखो V कितना दिया है 100 plus or minus 5 volt. Okay, and current I is given to be 10 and plus or minus 10 plus or minus 0.2, बराबर। ये 100 plus or minus 5 और 10 plus or minus 0.2. Yes, so that is in ampere. Okay, and resistance R is actually given to be V upon I, बराबर। तो अभी delta R upon R
will actually be equal to delta V upon V plus delta I upon I. बराबर? So that we can get this percentage error by multiplying the both sides by 100. This is 100 and this is 100 again. Okay, so that we get this as delta V upon V, मतलब कितना हो गया वो 5 upon 100 and plus here it is 0.2 upon 10 and that is multiplied by 100. So if we distribute this 100 to both of the terms inside, then we can get this 500 upon 100 plus here it is going to be 20 by 10. करेक्ट है? जिससे हमको मिलता है ये 5 plus 2 comes out to be 7 and that 7 is in percentages. So 7% will be the correct answer. समझा ठीक से? Okay. So this type of questions are very easy. You can do them. Yes, देखो इधर यहाँ पे ये orally करके दिखाओ फटाफट. The radius of a sphere is given to be 4.3 plus or minus 0.1 सेंटीमीटर. तो ये उसका रेडियस है. 4.3 मतलब रेडियस उसका है और ये 0.1 जो है वो डेल्टा आर है, मतलब रेडियस का एरर है, रेडियस के अंदर का डेल्टा आर है. तो हाउ कैन वी गेट द परसेंटेज एरर इन द वॉल्यूम? सी हियर, वॉल्यूम इज गिवन टू बी 4/3 पाई आर क्यूब. कोई भी स्फीयर का रेडियस ऐसे वॉल्यूम ऐसे दिया जाता है. तो डेल्टा वी अपॉन वी विल एक्चुअली बी इक्वल टू, अब देखो 4/3 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, डोंट हैव एनी एरर्स, बट दिस आर इज हैविंग द एरर. तो इसलिए फिर यहाँ पे ये जो क्यूब है ना, ये क्यूब क्या होगा, सामने आ जाएगा इधर और हमको मिलेगा डेल्टा आर अपॉन आर. तो ये हो गया रिलेटिव एरर इन आर. अब ये इक्वेशन बन गया. इसको अगर दोनों तरफ अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों परसेंटेज एरर बन जाएंगे और हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि परसेंटेज एरर इन V will actually be equal to 3 times of the percentage error in R, right? अभी परसेंटेज एरर इन R कितना है तो चेक करो यहाँ पे. R का वैल्यू दे रखा है 4.3 और उसका एरर दे रखा है 0.1. करेक्ट है? तो इसलिए फिर यहाँ पे आ जाएगा 3 times of 0.1 upon 4.3 and that is multiplied by 100. So this will be actually the final answer. 3 into 0.1 upon 4.3 into 100, which is already there. 3 into 0.1 into 100 upon 4.3. This is going to be the correct option. Okay. Series, a cube has a side of length 1.2 into 10 raised to minus 2 meter, right? Calculate its volume. So how can we get the volume? अब देखो वॉल्यूम जो है वो उसका जो वैल्यू है वो 1.732 या 1.7, 1.73 या 1.7 इतना ही होने वाला है. वो तो हम समझ सकते हैं आराम से पूरा कैलकुलेशन करने के बाद. और 10⁻⁶ भी सारे ऑप्शंस में हमको दिख रहा है, कॉमन है वो, तो उसमें तो कोई गलती नहीं होने वाला है. लेकिन हम जो क्वेश्चन का जो रूख है वो क्या है कि जब यहाँ पे रेडियस के अंदर, मतलब सॉरी लाइन लेंथ के अंदर अगर दो ही सिग्निफिकेंट फिगर्स है तो वॉल्यूम के अंदर भी दो ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए. अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमको पता चल रहा है कि यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स दिख रहे हैं, which should not be the correct answer. Then this answer also includes 3 significant figures. Again, even this answer includes 4 significant figures, whereas we want only 2, right? So therefore we can be sure that this must be the correct reporting answer, that is 1.7 into 10⁻⁶ meter cube, just because this 1.2 contains only 2 significant figures, so we must have the 2 significant figures in the answer also. तो आंसर के अंदर भी हमको दो ही सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने होते हैं.
देखो दिस टाइप ऑफ एग्जांपल इज जस्ट अ फॉर्मूला बेस्ड, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे देखो x is going to be a minus b, right? Then the maximum percentage error in the measurement of x will be, तो परसेंटेज एरर कितना होगा? तो देखो ठीक से मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको कि अगर x इज इक्वल टू a माइनस बी होता है, ठीक है, x इज इक्वल टू a माइनस बी है, तो डेल्टा x इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा a प्लस डेल्टा b होगा, बराबर है, क्योंकि एरर्स ऑलवेज गेट एड अप टुगेदर एंड व्हेन इन द डिफरेंस the normal errors just get added together. तो अभी यहाँ पे percentage error in x क्या होगा? How will you get the percentage error in x? तो उसके लिए हमको मिलेगा डेल्टा x अपॉन x and that is multiplied by 100, बराबर। तो अभी डेल्टा x कितना है? तो देखो डेल्टा a प्लस डेल्टा b एंड x का वैल्यू कितना है? तो देखो a माइनस b एंड that is to be multiplied by 100। तो यहाँ पे ऊपर में प्लस साइन आ रहा है और नीचे माइनस साइन आ रहा है, समझा क्यों? क्योंकि एरर्स जो है वो ऐड होते हैं हमेशा, भले क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं लेकिन एरर्स हमेशा ऐड होते हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या आएगा करेक्ट वाला? तो ये देखो ये डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपॉन ए माइनस बी इंटू 100, दिस मस्ट बी द इन परसेंटेजेस। ओके, सो दिस ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। समझा क्या ठीक से? रिलेटिव एरर्स ये वाला इक्वेशन या ये वाला इक्वेशन कभी नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि एरर्स कैन नेवर गेट सब्ट्रैक्टेड। अच्छा ये ओरली करो। If the error in the measurement of radius of a sphere is 2%, then the error in the determination of its volume will be 6%. Just multiplied by 3. That's all. Because sphere का वॉल्यूम जो है वो रेडियस के क्यूब के ऊपर डिपेंड करता है, और क्यूब मतलब वो 3 टाइम्स हो जाएगा ना, सेम जैसे वैसे ही जैसे हमने अभी ऊपर का एग्जांपल किया था। ओके, ये देखो ये भी सेम वैसा ही है। Error in radius is 3%. The what is the error in the volume? 9%. Just triple of that, because sphere volume of a sphere depends on the cube of radius. Remember. Yes. अभी ये देखो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ओके, R1 is equal to 6 plus or minus 0.3 kilo ohm and R2 is equal to 10 plus or minus 0.2 kilo ohm. Then the percentage error in the equivalent resistance when they are connected in parallel. तो देखो ठीक से पैरेलल में जब उनको कनेक्ट किया जाता है तब उनके बीच में परसेंटेज एरर कितना आएगा वो हमको ढूंढना है। तो देखो तुमको पता है पैरेलल में फॉर्मूला क्या होता है? पहले तो हम ये दोनों वैल्यूज कॉपी करके लेंगे उधर हमारे बोर्ड पे। R1 is going to be 6 plus or minus 0.3 kilo ohm. Okay, yes, so R1 is going to be 6 plus or minus 0.3 kilo ohm. And what is R2 here? R2 is going to be 10 plus or minus 0.2 kilo ohm. Yes, 10 plus or minus 0.2 kilo ohm. Yes. तो ये जो 6 है तो वो एक्चुअली वैल्यू R1 का है। That means R1 is 6 kilo ohm. Okay, and delta R1 is actually 0.3 kilo ohm. And the same time R2 is actually going to be 10 kilo ohm, right? And at the same time here delta R2 is going to be 0.2 kilo ohm. ये तो समझ ही सकते हो, नो डाउट। अभी R1 R2 डेल्टा R2 हमको दिया हुआ है। अभी हमको पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब दो रेजिस्टेंसेस लगाए जाते हैं, when two resistances are connected in parallel like this, what happens is their equivalent resistance R effective or RP we can say is given by the equation 1 upon RP is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2. Okay, so here we can say that this is the equation. अब ये इक्वेशन तो हमने अभी तक देखा ही नहीं है कभी भी, और ऐसे हालत में ऐसे इक्वेशन के केस में फिर एरर कैसे निकालने का? परसेंटेज एरर इन आरपी हमको ढूंढ के निकालना है, जबकि हमको परसेंटेज एरर इन R1 और R2 के अंदर का एरर पता है।
but we want to find out the error in RP. How will you get that? तो उसके लिए इस इक्वेशन को हमको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. तो क्या करो, देखो इस 1/RP को वैसे ही रखो और यहाँ पे एलसीएम निकाल के लो. तो उससे हमको मिलेगा R2 plus R1 upon R1 into R2, करेक्ट है. एंड देन जस्ट रेसिप्रोकल दिस, तो उसको उल्टा कर देंगे तो हमको मिलेगा RP which is actually going to be equal to R1 R2 upon R1 plus R2, करेक्ट है क्या? ये हमको मिल गया फॉर्मूला फॉर RP. yes, and now we'll see that RP can be written to be equal to the product of two quantities which are there in the numerator and which is divided by a single quantity which is there in the denominator. Let us replace this R1 plus R2 by RS. चलेगा? एक कोई तो भी नया क्वांटिटी से उसको रिप्लेस कर दो. Put R1 plus R2 is equal to RS. Okay, then this RP can actually be found out to be equal to R1 into R2 upon RS, right? And this equation can be written in the error form. तो एरर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं इसको? तो देखो ऐसा आएगा डेल्टा RP upon RP itself, which is equal to delta R1 upon R1 only plus here it is delta R2 upon R2 here and plus क्योंकि ये डिनोमिनेटर में जो है वो भी रिलेटिव एरर उसके अंदर का पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करता है. तो here it will be delta RS upon RS itself, राइट. तो ये चारों सभी चीजें हमको निकालनी है. अभी इसमें डेल्टा R1 अपॉन R1 तो हम आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि R1 भी हमको पता है, R2 भी पता है और डेल्टा R1 भी पता है. इवन ये भी हम निकाल सकते हैं आराम से क्योंकि हमारे पास R2 भी है और डेल्टा R2 भी है, नो डाउट. बट व्हाट अबाउट दिस, हाउ विल यू गेट दैट? तो वो निकालने के लिए हम एक सिंपल सी बात सेपरेट करेंगे. तो देखो RS का वैल्यू निकाल के दिखाएंगे पहले. व्हाट इज RS हियर? सो दिस RS हियर इज गोइंग टू बी एक्चुअली सिंपली R1 plus R2. ये देखो यहाँ पे हमने रिप्लेस किया है ना उसको, RS को हमने R1 plus R2 से रिप्लेस किया है. तो इसलिए RS will actually be equal to R1 plus R2 means it should be 6 plus 10, correct है. So here it is going to be 6 plus 10 which happens to be 16, correct है. And what is this delta RS here? How will you get that? डेल्टा RS कैसे निकालेंगे? अब देखो अगर RS R1 plus R2 के बराबर है तो डेल्टा RS will be actually equal to simply डेल्टा R1 plus डेल्टा R2. एडिशन में एरर्स भी ऐड ही होते हैं तो इसलिए डेल्टा R1 कितना है? ये देखो 0.3 और डेल्टा R2 है 0.2. तो इन दोनों को यहाँ पे डाल देंगे तो हमको मिलेगा 0.3 plus 0.2 which is going to be actually 0.5, करेक्ट है. यस, डेल्टा RS मिल गया. एंड व्हाट अबाउट RP? अच्छा RP तो हमको नहीं चाहिए, RP क्योंकि वो रिलेटिव एरर ही चाहिए ना हमको. तो जस्ट पुट ऑल दिस वैल्यूज हियर इन दिस फॉर्मूला सो दैट वी नेक्स्ट स्टेप वी गेट डेल्टा RP अपॉन RP. ये फॉर्मूला हम अभी इक्वेट कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं उसको. तो डेल्टा RP अपॉन RP विल एक्चुअली बी इक्वल टू yes, so delta RP upon RP will be equal to delta R1 upon R1. What is delta R1? See it here, it is going to be 0.3, correct है. So just put it here 0.3 upon R1. How much is it? See it here, 6 actually. So we have to replace it by 6 plus what is delta R2? ये देखो delta R2 upon R2. So delta R2 is going to be 0.2 and then R1 R2 is going to be 10. So here it will be 0.2 upon 10, correct. Plus what is this third term here? Delta RS upon RS. So delta RS is here 0.5, you can see clearly. So 0.5 and RS is actually 16. Yes, so here it is 16. And then just simplify this further so that अच्छा हमको ये चेक करो परसेंटेज एरर निकालना है या जस्ट नॉर्मल एरर निकालना है. यस, परसेंटेज एरर निकालना है. ओके, तो इसके लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे. इस तरफ भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो LHS को और RHS को भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो so that we can get the percentage error. Yes, and then just multiply this 100 by this all the terms throughout inside so that we get this 0.3 into 100 comes out to be 30. That is to be divided by 6 plus here it is going to be 20 and that is to be divided by 10 plus here it is 50 and that is divided by 16, correct.
so that we can get this as 30 by 6 matlab 5, correct, plus 2 here, and here it is going to be 15 by 16 कितना 50 by 16 कितना होता है 16 3s are 48, correct है, and 2 left as it is 20, so 16 1s are बस हो गया 3.1. okay, so 5 plus 2 plus 3.1, how much comes out to be 10.1, correct है, so 10.1 के आसपास एरर आना चाहिए. Yes, it's 10.125. This is going to be actually the correct option. Okay, समझा ठीक से. तो इस तरह से हमको एरर्स कैलकुलेट करने होते हैं. देखो, ओके, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो फटाफट. Okay, so let us stop here. We'll continue still more questions in the next lecture. Thank you all of you.